हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डैनियल डेफो की। तो डैनियल डेफो, इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 1660, मतलब जिस टाइम मोनार्की रिस्टोर हुई थी, चार्ल्स सेकंड का रेन शुरू हुआ था लंदन इंग्लैंड में, और डेथ हुई थी इनकी 1731 में लंदन इंग्लैंड में। ये इंग्लिश राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और पोएट हैं। डेनियल डेफो was the first of the great 18th century English novelist. He wrote more than 500 books, pamphlets, articles and poems. अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन, मैरिज और अर्ली करियर की। Little is known about the birth and early childhood of Daniel Defoe, as no baptism record exists for him. It is likely that he was born in London, England in 1660. जेम्स फो, इनके फादर का नाम है जेम्स फो। ही वाज ए बुचर, बुचर वही जो मीट सेल करते हैं, बाय ट्रेड एंड ऑल्सो ए प्रोटेस्टेंट प्रेसबाइटेरियन कंसिडर्ड। ये प्रोस्टेटेंट प्रेसबाइटेरियन वो होते हैं जो कंसिडर टू बी अ पर्सन हु थॉट डिफरेंटली एंड डिड नॉट बिलीव इन और बिलोंग टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग होते हैं। डेनियल डेफो एडेड द डे टू हिज ओरिजिनल लास्ट नेम फो व्हेन ही वाज 40। तो इनको सिर्फ जो फो सरनेम था वो पसंद नहीं था, इन्होंने उसके आगे डी ई लगा दिया। He had a sister Elizabeth who was born a year earlier. When he was 10, his mother died. He had early thoughts of becoming a Presbyterian minister, and in the 1670s he attended the Reverend Charles Morton's famous academy near London. In 1684, Defoe married Mary Tuffley, who brought him the handsome dowry of £3,700. They had 7 children. Defoe participated briefly in Monmouth Rebellion in 1685, a Protestant uprising, बट एस्केप्ड कैप्चर एंड पनिशमेंट। तो ये पकड़े नहीं गए थे और पनिशमेंट भी नहीं मिली थी इनको। जो मन माउथ रिबेलियन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फ्रॉम 1685 थ्रू 1692 ही इंगेज्ड इन ट्रेड इन लंदन एज अ होल सेल होजरी एजेंट। तो यहाँ पे ये एक छोटे मोटे बिजनेसमैन भी बन गए थे। एन इम्पोर्टर ऑफ वाइन एंड टोबैको एंड पार्ट ओनर एंड इंश्योरर ऑफ शिप्स। डेफो एविडेंटली डिड बिजनेस विद किंग विलियम थर्ड। तो उसके बाद किंग विलियम, इस टाइम किंग विलियम थर्ड का रेन था। ही सफर्ड लॉसेस फ्रॉम अंडर राइटिंग मैरिन इंश्योरेंस फॉर द किंग एंड वॉज फोर्स टू डिक्लेयर बैंक bankruptcy in 1692. Although he settled with the people to whom he owed money in 1693, he faced the threat of bankruptcy through his life and faced imprisonment for debt and liable. The crime of writing or publishing untrue statement that harm other people. तो एक तरह से ये जो इंश्योरेंस टाइप में स्टेटमेंट होते थे ये अनट्रू लिखते थे। 7 times arrested in 1703 for having published the shortest way with the dissenters in 1702. Defoe was tried and sentenced, put before public abuse and taken to prison. Robert Walpole, ये इंग्लैंड के पीएम भी रहे हैं, रिलीज्ड हिम 5 months later and offered him a post as a government agent. Defoe continued to serve the government as journalist, pamphleteer and secret agent for the remainder of his life. His first major work, an essay upon Project 1697, proposed way of providing better roads, insurance and education to be supported by a tax upon learning to be paid by the authors of books. Many of these topics reappeared in his later works. In 1701, Defoe published The True Born Englishman. ये भी important work है इनका, The True Born Englishman, the most widely sold poem in English up to that time. He estimated that more than 80,000 copies of this defense of William III against the attack of John Tuchin were sold. Although Defoe's shortest way with the dissenters 1702, which ridiculed the harshness of the Church of England, led to his arrest, the popularity of the hymn to the pillory 1703, ये भी इनका वर्क है, hymn to pillory, indicated the favor that he had found with the London public. At the age of 59, आफ्टर अ फुल कैरियर एज ए बिजनेसमैन, इस टाइम ये बिजनेसमैन बने थे। जो ट्रेड्स का इनका करियर था उसमें काफ़ी टॉप पे थे। गवर्नमेंट सर्वेंट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, जर्नलिस्ट। डेफो बिगिन ए करियर एज नोवेलिस्ट। तो ये सब करके इन्होंने बाद में नोवेलिस्ट बने थे। ये विद इन 6 years ही प्रोड्यूस्ड 6 novels। तो 6 year में 6 novel प्रोड्यूस किए, ऑल ऑफ विच गेव हिम हिज ग्रेटेस्ट फेम।
In 1719, Defoe published his most lasting work, The Life and Strange Surprising Adventure of Robinson Crusoe. Robinson Crusoe जो 1719 में आया था, important work है इनका. The success of the story inspired Defoe to write The Further Adventure of Robinson Crusoe later in 1719 and serious reflection during the life and surprising adventure 1720 इनकी जो 6 novel है उन्हीं के नाम है. The later year he published another travel novel, The Life, Adventures and Piracies of the famous Captain Singleton. The novels for which he is now most famous, रॉबिन्सन क्रूसो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर मोल फ्लैंडर 1722 और रुक्साना. इन दोनों में फीमेल हीरोइंस है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो फीमेल है, मोल फ्लैंडर में भी और रुक्साना में भी. द लास्ट टू बीइंग नोटेबल फॉर देयर मोरली ambiguous female heroines. In this later years he turned his attention once more to state of the nation, writing about British trade and foreign policy. तो मोल फ्लैंडर का थोड़ा सा समरी करते हैं कि क्या है मोल फ्लैंडर में. पिकरेस्क नोवेल है बाय डेनियल डेफो. पिकरेस्क नोवेल वो होता है जिसमें डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसका एडवेंचर दिखाया जाता है कि कैसे जो हीरो है वो एडवेंचर से कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये छोड़ के दूसरा काम पकड़ रहा है, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ रहा है. उसका जो भी लाइफ का एडवेंचर है उसको दिखाया गया है. ये 1722 में आया था. द नोवेल रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ ए लस्टी एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन हु इज कंपेल्ड from earliest childhood to make her own way in 17th century England. The plot is summed up in the novel's full title. तो यहाँ से इसका टाइटल अब शुरू होता है और ये टाइटल अपने आप में एक समरी ही है इसका. The fortunes and misfortunes of the famous Moll Flander, who was born in Newgate. न्यूगेट उस टाइम में इंग्लैंड में ये एक जेल था, मतलब न्यूगेट प्रिजन, और काफ़ी लिटरेचर के काफ़ी वर्क्स में इसका जिक्र किया जाता है न्यूगेट प्रिजन का. एंड ड्यूरिंग अ लाइफ ऑफ कंटिन्यूड वेराइटी फॉर 60 years बिसाइड्स हर चाइल्डहुड वाज 12 year अ वॉर, 5 times अ वाइफ, और उसमें से एक बार क्या थी, अपने भाई की भी वाइफ बनी थी. 12 years अ थिफ, चोर भी बन गई. 8 years अ ट्रांसपोर्टेड फेलोन इन वर्जीनिया एंड लास्ट ग्रू रिच, लिव्ड ऑनेस्ट एंड डाइड ए पेनिटेंट. तो ये लास्ट में मतलब रिच हो गई थी और फिर उसने अपनी अच्छी लाइफ शुरू कर दी थी. रिटन फ्रॉम आवर ओन मेमोरेंडम. ये इतना पूरा इसका टाइटल है जो अपने आप में एक समरी है. द हीरोइन ऑफ डेफोज रुक्साना, तो एक मोल फ्लेंडर था, ये दूसरा जो है रुक्साना है, इसकी भी हीरोइन फीमेल ही है. सब टाइटल द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस इज ए काइंड ऑफ सुपीरियर मोल फ्लेंडर गोइंग थ्रू ए सीरीज ऑफ रिच प्रोटेक्टर्स एंड बिकमिंग वेरी रिच हर सेल्फ इन द प्रोसेस. तो ये इसका क्या था कि रिच लोगों से शादी करो और रिच हो जाओ. Yet this cannot go unpunished. When her Dutch merchant husband discovers her deceit, he leaves her almost penniless, and her end is the opposite of Moll's dying penitent while in prison for debt. Roxana's sin has been to take her fortune for granted and not to appreciate the effort and hard work which has gone into amassing it. Her death as a penitent affirmed the Puritan ethics which she has spent her life transgressing. She is not the role model for the woman of the time. She is far too independent, pleasure-loving, and adventurous. It is not long before the novel provided a female role model in the work of Samuel Richardson. तो सैमुअल रिचर्डसन थे, इनका वर्क था पामेला. पामेला में जो हीरोइन है, पामेला द विर्चू रिवार्डेड, इसका सब टाइटल है. तो इसमें क्या होता है कि जो हीरोइन है तो वो वर्चुअस होती है, बहुत ही अच्छी लेडी दिखाई जाती है, जबकि डेफो के जो नोवेल है जिसमें रोक्साना है या मोल फ्लेंडर है उनको अच्छा नहीं दिखाया गया, वो कोई सोसाइटी के लिए रोल मॉडल नहीं है. उसके बाद इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है 1719 में आया था, रॉबिन्सन क्रूसो, और इसका भी टाइटल अपने आप में इतना बड़ा है. द रॉबिन्सन क्रूसो की बात करते हैं जो 1719 में आया था. द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ यॉर्क मैरिनर हु लिव्ड 8 and 29 years. तो ये 29 years 28 years तक, सॉरी 8 and 20 years 28 years तक रहे थे आइसोलेशन में या एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे कोई नहीं था. ऑल अलोन in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Orinoco, having been cast on shore by shipwreck, wherein all the men perished by but himself, with an account how he was at last as strangely delivered by pirates, written by himself. तो इसमें एनोनिमसली इसको पब्लिश किया गया है.
इसमें राइटर का नाम नहीं लिखा गया है. Novel by Daniel Defoe, first published in London in 1719, often called the first English novel, was written by Daniel. The novel is the tale of one man's survival on a desert island following a shipwreck. Published in 1719, the book did not carry Defoe's name. It was offered to the public as a true account of real events documented by a real man named Crusoe, but readers were immediately skeptical. तो इसमें anonymously publish हुआ था. डेनियल डेफो का नाम इसमें नहीं था. इसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जिसने इस रियल इवेंट को जिया है, सफ़र किया है. द प्रोटैगनिस्ट इज एन एडवेंचरस हु विशेस टू ट्रैवल अब्रॉड. तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है रॉबिन्सन क्रूसो, वो उसको एडवेंचर बहुत पसंद होता है. उसके जो फादर होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उसको मना करते हैं कि तुम एक हम मिडिल क्लास लोग हैं और सिंपल सा अपना कोई जॉब पकड़ो और ये एडवेंचर वगैरह सब कुछ छोड़ दो. लेकिन उसका मन नहीं मानता है, वो नहीं छोड़ता है और वो एक दिन एक शिप बोर्ड करके लंदन में चला जाता है. वहाँ पे एक स्टॉर्म आता है, लेकिन एक दूसरी शिप उनको रेस्क्यू कर लेती है. उनके दूसरी शिप उनको रेस्क्यू कर लेती है और वो बच जाते हैं. तो बाद में वो लंदन जाता है, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के उनको बेचता है और एक तरह से मर्चेंट बन जाता है वो, और थोड़ा बहुत पैसा उसके पास हो जाता है. फिर वो फिर एक वॉयज पे जाना चाहता है, सी वॉयज पे. पर इस टाइम वो लकी नहीं साबित होता है. जैसे पिछली बार तो उसको दूसरी शिप ने रेस्क्यू कर लिया था, इस बार ऐसा नहीं होता है. फिर से एक स्टोरम आता है और अ टर्किश वेसल कैप्चर हिज शिप. उसकी जो शिप होती है उसको एक टर्किश वेसल होती है वो कैप्चर कर लेती है और उसको पकड़ के स्लेव बना लेती है. वहाँ पे वो 2 साल तक एज ए स्लेव काम करता है. और एक और स्लेव होता है उसके साथ जिसका नाम होता है जूरी. लेकिन बाद में ये 2 साल वहाँ पे एज ए स्लेव रहता है और बाद में अपने आप को किसी तरह से मैनेज कर लेता है वहाँ से और निकल जाते हैं वो. उसके बाद एक पोर्तुगीज शिप आती है जो उनको रेस्क्यू करती है और ही अगेन स्टार्ट अ शुगर बिजनेस विद फ्लोरिश. तो ब्राज़ील में वहाँ पे ये फिर से अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं. ही सेट्स ऑन अनदर वॉयज एंड गेट कोट इन ए स्टोरम. तो बाद में फिर वो एक वॉयज के लिए निकल पड़ता है. वहाँ पे फिर से स्टोरम आता है, रॉबिन्सन क्रूसो. उस स्टोरम से में बाद में उसको पता चलता है कि जो भी उस शिप पे थे वो सारे मर गए हैं एक तरह से. वो एक ही है जो सर्वाइव कर रहा है इस टाइम पे. तो क्रूसो सून लर्न्स ही इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ द एक्सपेंडिशन एंड सीक्स शेल्टर एंड फूड फॉर हिमसेल्फ. He returned to the wrecks, remains 12 times the salvage guns, powder, food, and other items. On shore, he finds goat he can graze for meat and build himself a shelter. तो वहाँ पे वो एक तरह से अपनी एक नई लाइफ शुरू कर लेता है जहाँ पे कोई भी दूर दूर तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता है. वो छोटी मोटी बोट बनाने की कोशिश भी करता है, वो खाने के लिए फूड इकट्ठा करता है, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, गन्स बनाता है, कोई पाउडर बनाता है. गोट है उसको एज ए पेट वो रखता है अपने पास. और वहाँ पे वो अपनी जो डेट है उसको हर रोज़ लिखता रहता है कि जब भी कभी 2 साल 4 साल बाद मैं यहाँ से निकलूँ तो मुझे टाइम का आइडिया हो कि कितने साल हो गए हैं. तो वहाँ पे वो इरेक्ट करता रहता है. ही इरेक्ट्स अ क्रॉस दैट ही, मतलब इस तरह से क्रॉस बनाता जाता है वो. ही इरेक्ट्स अ क्रॉस दैट ही इंस्क्रिब विद द डेट ऑफ हिज सर्वाइवल. तो कहाँ से शुरू होता है? September 1, 1655 एंड मेक्स ए नोच एवरी डे इन ऑर्डर नेवर टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. He also keeps a journal of his household activities, nothing his attempts to make candles, his lucky discoveries of sprouting grains. तो वहाँ पे वो ग्रेन को स्प्राउट करना भी सीख जाता है. And his construction of a cellar among other events. तो कई सारे इवेंट्स है जो वहाँ पे अकेला होता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है. In June 1660 he falls ill and hallucinates at that an angel visits warning him to repent. तो जो भी उसने पहले पाप किया है उसके लिए रिपेंट करने के लिए. ड्रिंकिंग टोबैको स्टीप्ड रम, क्रूसो एक्सपीरियंस अ रिलीजियस illumination and realize that God has delivered him from his earlier sin. तो एक तरह से जो सिन उन्होंने पहले किया था उसके सिन का ये एक तरह से रिजल्ट है. आफ्टर रिकवरिंग रॉबिन्सन बिलीव ही इज द किंग ऑफ द आइलैंड विद एनिमल्स अराउंड हिम हु कम्फर्ट हिम. तो बाद में धीरे धीरे वो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है और वो अपने आप को उस आइलैंड का किंग ही समझने लग जाता है. देन ही विजिट्स द अदर साइड ऑफ आइलैंड एंड रिजाइड्स देयर एज देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स. तो इधर तो ढूंढने लगता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ फूड वगैरह मिल जाते हैं. एक दिन वो नोटिस करता है कि एक फुटप्रिंट दिखाई देते हैं उसको जायंट, जैसे किसी इंसान के, तो जायंट के. तो वो उससे उसकी एक तरह से शांति खत्म हो जाती है. उसको लगता है कि कोई ना कोई बीस्ट या जो भी है उसको खाना चाहता है.
या कुछ खतरा है एक तरह से भी, कोई जायंट आएगा और उसको खा जाएगा, वो हड्डियां भी देखता है वहाँ पे। तो बाद में वो डिस्कवर करता है कि कैनिबल्स होते हैं, वो लोगों को पकड़ते हैं और उनको मार के खा जाते हैं, जो उनके एनिमी होते हैं उनको। ही ग्रोज अनॉक्सियस विद द थॉट ऑफ देम ईटिंग हिम अप। वन डे ही रेस्क्यू ए बॉय फ्रॉम द कैनिबल्स एंड किल्स देम। तो फिर वो पूरी तैयारी कर लेता है कि अगर जब वो कैनिबल्स मेरी तरफ आएंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा और उनको हरा दूंगा। तो वो पूरी तैयारी के साथ रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो एक बॉय को रेस्क्यू करता है, जो कैनिबल्स होते हैं वो उसको पकड़ के लेके आते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो उसको रेस्क्यू कर लेता है और वो लड़का बहुत खुश होता है। वो एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। और उसका नाम क्या होता है, फ्राइडे। ग्रेजुअली क्रूसो रेस्क्यू अदर पीपल्स टू एंड बिकम्स देयर। तो वो उसको इंग्लिश सिखाता है, क्रिश्चियन जो भी बिलीव्स हैं वो सिखाता है क्रूसो फ्राइडे को। और धीरे धीरे वो फिर दो और लोगों को रेस्क्यू करता है। उनमें से एक होता है जो फ्राइडे का फादर होता है। तो फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस आइलैंड पे। और बाद में एक शिप आती है और शिप का जो कैप्टन होता है, उस शिप में जो और लोग होते हैं वो कैप्टन के खिलाफ होते हैं। तो वो उस कैप्टन को भी एक तरह से उन लोगों से बचाता है और उस के साथ शिप में वो वापस इंग्लैंड चला जाता है। और लास्ट में काफ़ी पैसे हो जाते हैं उसके इकट्ठे हो जाते हैं, जो पहले उसका बिजनेस था उससे। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, कैप्टन और एक विडो होती है, वो उसका पैसा संभाल के रखते हैं। तो इन द एंड क्रूसो मैरिज एंड बिगेट्स 3 चिल्ड्रन। तो बाद में वो इंग्लैंड जाता है, वहाँ पे वो मैरिज करता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। उसकी वाइफ की बाद में डेथ हो जाती है। तो वो फिर से वो सी वॉयज के लिए निकल पड़ता है। एंड देयर ही लर्न्स द आइलैंड इज बूमिंग अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश। तो वो पहले वाले आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ उसको पता चलता है कि वहाँ पे स्पेनिश का रूल है इस टाइम पे। तो कॉलोनियलिज्म की स्टोरी भी है एक तरह से। उस टाइम पे जो इंग्लैंड था वो दूसरे लोगों पे रूल करता था, वहाँ पे कॉलोनीज बनाता था। तो कहीं ना कहीं पे वो भी इसमें दिखाया गया है। तो रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डेफो कंप्लीट हो गया है। रॉबिन्सन क्रूसो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोल फ्लैंडर और रुखसाना भी, इनका ईयर आपको याद होना चाहिए और टाइटल याद होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।